Hello everyone, welcome to my channel. So today what we are going to do is we are going to start chapter number 2, The Sound of Music. This chapter is divided into two parts. The part 1 is Evelyn Glennie, listen to the sound without hearing it. Part 2 is Bismillah Khan. Okay, so we are going to start this video with part 1. So let's get started. Yeah, and one more thing, the road not taken and the road not taken question answers are uploaded. If you have not seen, just go and check out them. So let's start. So the story is about Evelyn Glennie. Listen to the sound without hearing it. Actually, the Evelyn Glennie is a girl who, she has a problem of, not hearing. Like she is deaf. उसे अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं था बचपन से, but yes, at the age of 11 she know about her problem. But जब वो 8 years की थी तो उसकी मम्मा ने पहले ही उसे, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लिया था that इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है that she can't hear everything like, जैसे normal, तो एवलिन ग्लेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लेनी जो थी वो बिना किसी साउंड को हियर करे शी यूज्ड टू फील द म्यूजिक. She used to feel the music and this story is written by Deborah Cowley. So इस story के end में I will be providing you the mind map, so just watch the video till the end. So let's read part 1. Part 1, Evelyn Glennie is a multiplicationist. Multiplicationist means instruments or drums that are placed by hitting. ठीक है, percussionist means कि जो hit करते हैं ना, जो हम drums hit करके बजाते हैं, that means instrument जो हम hit करके बजाते हैं, that are percussionist. So she can play about 1000 instrument. वो 1000 instrument के करीब she could play, right? वो सारे instrument play कर देती 1000 तक with perfection. ठीक है, with no कुछ भी उसमें वो नहीं था, with perfection she could play. So she listened to the sound without hearing it. वो sound को feel करती थी without hearing it. ठीक है, like आपका अगर आपके बगल में आपका फोन है और if you are seeing my video on your phone, so obviously अगर आपका फोन अगर आपके बगल में रखा है, वाइब्रेट हो रहा है, you can feel it. हाँ, अगर उसकी आवाज नहीं है, लाइक कभी कभी आप लोग वाइब्रेट मोड पे रख देते हो, म्यूट मोड पे रख देते हो. म्यूट मोड में तो पता ही नहीं चलता, वाइब्रेट मोड पे रखते हो ना, वाइब्रेट मोड में ना आपको फील होता है, बिकॉज इट इज हमारे अंदर फील होती है, हमारे अंदर सेंसेस होते हैं. सो शी लिसन दो साउंड विदाउट हियरिंग. वो सुने बिना ही म्यूजिक को फील करती थी. एवलिन fought against a physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled persons. ठीक है, सो एवलिन जो थी वो फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ रही थी और लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी थी, बिकॉज फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो डिसेबल्ड पर्सन थे, जो लोग एवलिन की ही तरह थे, बट एवलिन जो थी वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी. Yes, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी. She was profoundly deaf. Profoundly means extremely deaf थी वो. Extreme मतलब बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल ही deaf हो गई थी वो तो. So she was 11 years old when it was discovered that she had the hearing disability. ठीक है, so जब वो मैंने आपको बताया था 11 years की थी, तो उसकी जो डिसेबिलिटी की, हियरिंग डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी, तब उसको पता लग गया था कि हाँ मैं नहीं सुन सकती. So she know about that. So she wanted to pursue her career in music, but her teachers discouraged her. ठीक है, उसको अपना जो करियर था वो म्यूजिक में परस्यू करना था, उसे परस्यू टू फॉलो. ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी स्लाइड जो पहले से ही वर्ड लिख रखे हैं, सो यू विल नॉट गेटिंग एनी अदर प्रॉब्लम. ठीक है, सो शी वांटेड टू परस्यू हर करियर इन द म्यूजिक, बट हर टीचर डिस्करेज हर. उसकी टीचर नहीं चाहती थी, उसको टीचर बहुत कहती, अरे तुम नहीं कर पाओगी, लाइक आपको अगर आप कोई काम करने जाओ, कोई डिस्करेज करे, यू डोंट लाइक दैट, बट यस उसकी टीचर डिस्करेज करती थी. इट वाज रॉन पॉप्स. ठीक है, रॉन पॉप्स एक बहुत ही वेल नोन नाम है, सो लाइक चैप्टर में बहुत ज्यादा लिया गया है, और सो आई थिंक यू शुड लर्न दिस नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Fine, recognized her potential and supported her in achieving her goal. It was Ron Forbes. Ron Forbes ही थे जिन्होंने उसकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया और उसको उसके गोल को अचीव करने में सपोर्ट किया. सो पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया और उसको सपोर्ट किया उसके गोल को अचीव करने के लिए. He advised her not to listen through her ears but try to sense and feel the music in some other ways.
उसको एवनली को एडवाइस करा उन्होंने कि आप अपने ईयर्स के नहीं थ्रू सुनिए, बट हाँ आपने सेंस करिए म्यूजिक को, काफी अदर वेज में फील करिए म्यूजिक को, सेंस करिए उसे. She felt the vibration of the higher drum from waist above and the lower drum from the waist down. उसको जो हायर ड्रम की वाइब्रेशंस वेस्ट अबव से आने लगी और लोअर ड्रम की वेस्ट डाउन से, बिकॉज शी फील द वाइब्रेशंस. ठीक है, वो वाइब्रेशंस फील करती थी, तभी उसके पास लाइक इतना एबिलिटी आया कि वो ये सब कुछ पहचानने लग गई. लेटर ऑन शी रियलाइज्ड दैट शी कुड फील द वाइब्रेशन इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. सी कहते हैं ना कि लाइक जो डिसेबल पर्सन थी, अगर उसको साउंड, उसको म्यूजिक पसंद था, इट डजंट मीन अगर आप बहुत डिसेबल हो और ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है. जो भगवान आपको डिसेबल, अगर आपके साथ कुछ गलत करते, आपको किसी पार्ट को आपको कुछ गलत बनाते हैं ना, तो आपको किसी चीज में इतना अच्छा बनाते हैं, इतना टॉप बनाते हैं, दैट यू जस्ट टॉप इट, लाइक यू अचीव इट. ठीक है. So later on she realized that she could feel the vibration in every part of her body. वो हर एक पार्ट अपने बॉडी से, हर अपने बॉडी पार्ट से वो वाइब्रेशंस फील करती थी of music. The music tingled in the skin, her cheekbones and even in hair. उसके hair, cheekbones में tingle करता था, उसकी skin में tingle होता था. Tingle, like goosebumps. She had learned to open her body and mind. ठीक है, वो उसने सीख लिया था अपने बॉडी और माइंड को कैसे ओपन करना है साउंड से एंड वाइब्रेशंस अराउंड हर. वो साउंड्स, वाइब्रेशंस उसके पास अगल बगल की जो थी, वो उससे सब बहुत कुछ सीखी थी. Thus the music journey began and she never looked back after that. उसकी जो एक बार जो म्यूजिक जर्नी शुरू हो गई ना, देन उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. एंड देन वो तो आगे चलती गई एंड आगे ही अचीव करती गई वो. She never looked back. So, Evan Lee joined the prestigious Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. ठीक है, एवन ली ने सबसे प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ज्वाइन करी, और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. ठीक है, रॉयल अकेडमी यहाँ पे म्यूजिक की है. सो यहाँ पे म्यूजिक की उसने ज्वाइन करी एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. म्यूजिक उस अकेडमी की ही हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स उसने पाए थे. किसने? आपका एवनली ग्लैनी ने. ठीक है. शी वर्कड हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. वो बहुत ही अच्छी उससे डिटर्मिनेशन से उसने काम किया. शी गॉट राइट टू द टॉप. वो टॉप पे भी गई बिकॉज उसने डिटर्मिनेशन से काम किया था. एंड शी लव म्यूजिक बिकॉज in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. ठीक है, सो प्लीज इस अवार्ड का नाम याद कर लेना, ये एग्जाम में जरूर आएगा प्लीज. ठीक है, सो ये डेट भी, जितने भी डेट्स हैं दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज रॉन फोर्ब्स ने कब उसे हेल्प करी. ठीक है, सो ये सब आएगा. Apart from the regular concerts, Evan Lee gives free concert in the prisons and hospital. उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि रेगुलर कंसर्ट्स देने के बावजूद भी वो फ्री कंसर्ट्स देती थी प्रिजन्स में जेल में या फिर हॉस्पिटल्स में. ठीक है. She has been a shining inspiration for deaf children. ठीक है, वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी जो डेफ थे, जो सुन नहीं सकते थे, वो जो चिल्ड्रन, उनके लिए शी वाज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन. ठीक है. She was accomplished more than the most people twice her age. ठीक है, वो जो लोग अपनी दुगनी एज का भी नहीं पा पाते, उसने अपनी ही एज में इतना कुछ कर लिया था. She has brought perception. So she has brought, ये गलती से कट गया. She has brought perception to the front of orchestra. ठीक है. So orchestra is group of musicians. ठीक है, so इस लाइन को याद रखना. So हमारा ये it is completed. So let's meet in another video with the story of Bismillah Khan. Thank you so much for watching my video. Please give a big thumbs up if you like my video, share it and subscribe my channel. Thank you. So this is the mind map of the chapter The Sound of Music, the part 1, Evan Lee Glani वाला part का जो है ना, this is what mind map. So you can see mother came to know about her deafness at the age of 8. जब वो 8 years की थी, then she know the deafness की उसको problem थी, उसकी मम्मी को पता लग गया था. उसके struggles, she was deaf. उसके struggles क्या थे? She was deaf. ठीक है, वो deaf थी and demotivated by teachers for playing xylophone.
ठीक है, जाइलोफोन, ठीक है, इसे जाइलोफोन बोलते हैं, तो प्लीज इसे प्रोनाउंस करने में गलती मत कीजिएगा जैसे मैंने पहले करा। सो इट्स जाइलोफोन, ठीक है। सो उसकी टीचर ने उसे डीमोटिवेट किया, उसके लिए वो पहला स्ट्रगल था। और जब वो जाइलोफोन उसने फर्स्ट टाइम प्ले किया था, तो उसके लिए जो डीमोटिवेट हुई थी वो अलग उसके लिए वो था, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। सो शी इज एवेलिन ग्लेनी, जिसने एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया, और शी वाज एन इंस्पिरेशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। सो इस स्टोरी का थीम क्या है? म्यूजिक, persistence, zeal to succeed, ठीक है। So she listened to the sound without hearing it, सुनने बिना ही वो she used to listen to the sound. She was a multiplicationist, मैंने बताया multiplicationist means she can play 1000 of instruments at a time, like she with perfection, वो 1000 instruments बजा सकती थी with perfection, ठीक है। फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन विद हॉस्पिटल, ठीक है, वो प्रिजन और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट्स करती थी अपने, ठीक है। इनसे ना उसको ब्लेसिंग्स भी मिलती थी, या इनसे उसको ब्लेसिंग भी मिलती थी, जो ये जो ऐसे काम होता है ना, सो दिस ब्लेसिंग वाले वर्क पे होते हैं। सो शी प्ले 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ईज, ठीक है, विद ईज मीन्स परफेक्शन, ठीक है। हर वर्क, हर मोटिवेशन रॉन फ्रॉप्स, एक यही पर्सन थे जिन्होंने उसे मोटिवेट किया था, ठीक है। सो व्हाट इज हर एजुकेशन? हर एजुकेशन इज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। इन लंदन शी यूज्ड टू टेक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से वो लिया था, एंड शी स्कोर्ड हाईएस्ट, शी वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन द हिस्ट्री। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की जो रॉयल एकेडमी थी, उसमें से जिसने करा था, she was the first one. So this much. Thank you so much.